Dear students of Standard 7, this video is prepared in SST subject for the students who are studying in Standard 7 in CBSE course, ICSE course and the state government schools course. So this video is prepared by me to give the best concept regarding SST subject of Standard 7, those aspirants who study in CBSE course, ICSE course, as well as state government schools, those who are studying. Just I prepared this video for those aspirants only in SST subject, in social science or social study. Okay, the first chapter is the Earth's structure and landforms. This is according to the syllabus of NCERT. Now, in this chapter, the first point is environment. Let us come to know about our environment. The Earth is the only planet in the solar system that supports life. Correct? So many planets are here, but Earth is the only planet in the solar system which supports life. This is because the reason is written here. Conditions suitable for life are found only on the Earth. Now, let us come to know what are the conditions suitable for life. That air is present here. Okay. Food is available here, water is available here, and we can do agriculture and can grow the plants or whatever the food we need. That can be possible in the soil, and we get maximum our needs from the soil only. Correct? From the animals also we get, and that animals survive on the earth because plant is present here. Now see here. However, the conditions are not the same everywhere on the earth. अर्थ पे भी कंडीशंस हर जगह सेम नहीं है. कहीं की जमीन पथरीली है, मतलब वो उपजाऊ नहीं है, उसमें हम कॉर्न को, अनाज को नहीं उपजा सकते हैं. तो कहीं ऐसा है कि सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है. इट इज़ हॉट एट सम प्लेसेस, कहीं गर्मी अधिक है, कहीं ठंड अधिक है. व्हाइल एट अदर्स इट इज़ कोल्ड. करेक्ट? The landforms, soil and other conditions also differ from place to place. हमारे अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो हर जगह कंडीशन डिफरेंट है. ठीक है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और हम सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं लिव एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस. तो हम लोग हर जगह, एक ही व्यक्ति हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जहाँ रहता है उसी इन्वायरमेंट में वो ढल जाता है और दूसरे इन्वायरमेंट में उसको दिक्कत होती है. What is the reason behind it? This is because each organism is made in such a way that it can live under a particular set of conditions. The physical and biological conditions in which an organism lives make up its environment. This is the proper definition of the environment. The physical and biological. Okay, physical means suppose air is here. Okay, soil is present, water is present. This is the physical condition. And biological means according to our metabolism, the organism who survive in a particular place are adopted to that very place only. They can't survive in other place. Like this, polar bear को जो ठंड प्रदेश कोल्ड रीजन में रहता है, अगर उसको हम जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ उसको अगर सर्वाइव करने के लिए दे दिया जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसी तरह गर्मी हॉट वाले प्लेस में रहने वाले जो एनिमल्स हैं
उसको अगर बहुत ही अधिक कोल्ड वाले प्लेस में डाल दिया जाए तो सर्वाइव नहीं करेगा. दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस इन व्हिच an organism live make up its environment. Correct? Now just I move other way. Those components of the organism's environment that are provided by nature form its natural environment. किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी कंपोनेंट मीन्स घटक, मतलब जैसे कंपोनेंट हो गया वाटर, ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के लिए वाटर है, सॉइल हो गया, एयर है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट. तो उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं. आवर नेचुरल इन्वायरमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म्स एटसेट्रा मेक अप आवर फिजिकल इन्वायरमेंट. तो फिजिकल इन्वायरमेंट में हम इन चीज़ों को रखते हैं, डिवाइड करते हैं. And planets and animals around us make up our biological environment. Plant, okay? क्योंकि बायो में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं. तो ये दोनों मिलकर के किस तरह का इन्वायरमेंट बनाता है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है. नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज नेचर्स गिफ्ट. हमारी चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें नेचर के द्वारा ही प्रोवाइड नहीं की गई है. जैसे रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोगों ने मतलब क्रिएट किया है. हम लोग मैंस का क्रिएशन है. एंड सो ऑन आर मैंस क्रिएशंस. आदमी के द्वारा बनाया गया है, रचित है. रचित मतलब हम लोग उसको बनाए हैं. दे अफेक्ट आवर लाइफ्स. और ये सभी हमारी जिंदगी को प्रभावित भी करते हैं. वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच वी लिव. अब जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट के सोशल, मतलब वहाँ के समाज के लोग कैसे हैं, ये भी हमें प्रभावित करता है. अगर वो हमें परेशान करते हैं तो हमारे डेवलपमेंट रुक जाते हैं. लेकिन अगर वो कोऑपरेट करते हैं हमें आगे बढ़ने में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते हैं. और इस तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी उस इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है. पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, जो भी उस जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है हमारे बेटरमेंट के लिए, ये डिपेंड करता है. अदर कंडीशंस इन विच वी लिव. करेक्ट. ऑल दीज कंडीशंस एंड मैन मेड थिंग्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. ये जो भी कंडीशन नेचर ने हमें दिया और हम लोगों ने बनाया वो सभी हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं और ये इन्वायरमेंट का एक भाग है. चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म. अब चेंजिंग हो जाता है तो वो हमारे उस इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम लोग रह रहे हैं तो वी आर ऑल्सो दोज ऑर्गेनिज्म. द इन्वायरमेंट टू, इन्वायरमेंट भी is affected by the actions of the organism that are a part of it. और हमारे क्रियाकलाप कैसे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम प्लांट को काट करके बर्बाद कर रहे हैं या वाटर को डर्टी कर रहे हैं, सॉइल को डर्टी कर रहे हैं. मतलब उसको हम उसमें हम प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं, इससे इन्वायरमेंट हमारा प्रभावित होता है. तो हमारी जो एक्टिविटी है वो भी इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है. करेक्ट. यूजुअली, साधारणतया नेचर वर्क्स इन सच ए वे. नेचर इस तरह काम करता है दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हार्डली चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. इन्वायरमेंट इस तरह से वर्क करता है जो बहुत दिनों तक इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो सुरक्षित रहे. फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन ऑफ living organisms, decay of organic matters and burning of fuels use up oxygen and release carbon dioxide into the atmosphere. हम जानते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज़ करते हैं. उसमें जो भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक होता है और वो ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे
बॉडी में जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। करेक्ट। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्यूल जलाते हैं, बेवजह का जलाते हैं, बिना यूज़ नहीं रहता है फिर भी उसका मिस यूज़ करते हैं, तो ये ऑक्सीजन, हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है या ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होता है। सपोज, तो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो फ्यूल्स है वो जलता है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और रिलीज करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम, और इसी वक्त, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और देखिए ग्रीन प्लांट्स जो है उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बेवजह उसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो फोटोसिंथेसिस में वो अपना फूड बनाने में उसका यूज कर लेता है और प्योर ऑक्सीजन हमें रिलीज कर देता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एज यू नो दैट photosynthesis is that process in which green plants prepare its food in presence of sunlight and chlorophyll. Correct? This keeps the amount of these gases in the air constant. और चूंकि नेचर एक एक चीज से दूसरे चीज को बैलेंस करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और जो भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके वो प्योर ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमारे लिए, लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली आई टीच SST सब्जेक्ट फॉर द स्टैंडर्ड 7. This video is prepared for those aspirants who are in standard 7 and they will have to learn. Wait for the next class. In next class, just I prepare the topic, whatever it is mentioned in this portion only.